لیکن وہ میرے خواب، اس ناول کو تحریر کیا ہے فرا بھٹو نے۔ مہرالنساء بیگم کے گھر میں ان کی کیئر ٹیکر بن کر نشا کی زندگی بظاہر سپاٹ انداز میں گزر رہی تھی۔ دادی کا رویہ بہت شفقت آمیز تھا۔ گھر میں کوئی خاص کام بھی نشا کے سپرد نہیں کیا گیا تھا۔ برتن، کپڑے، صفائی وقتی ملازمہ آ کر کر جاتی۔ کوکنگ دادی خود بہت شوق سے کرتی تھی، اور اس شوق کی وجہ ابراہم کی ذات تھی۔ وہ پوتے کے لیے اپنی پسند کو مد نظر رکھ کر ہر چیز پکاتی۔ صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی اس وقت کا انتظار شروع ہو جاتا کر دیتی جب وہ ان کے پاس آتا تھا۔ ہر وقت نشا کو اس کے بچپن کے قصے سناتی، اپنی پیدائش سے لے کر 5 سال تک اس گھر میں بتائے ننھے ابراہم کے دن رات۔ اس کا رونا، ہنسنا، پاؤں پاؤں چلنا، پہلا لفظ بولنا، ان کا اسے گودو کھلانا، تمام تر باتیں پوری جزیات کے ساتھ ان کو یاد تھیں۔ وہ ان باتوں کو بار بار دہرا کر بے انتہا خوش ہوتی۔ نشرہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر یہ ابراہم نامہ سنتی۔ بظاہر وہ پرسکون نظر آتی تھی، پر اس کے باطن میں جو تلاطم برپا تھا وہ اسے کسی پل چین نہ لینے دیتا۔ کسی اور کے کیے کے جرم کی سزا وہ بھگت رہی تھی، اور مجرم معاشرے میں باعزت طریقے سے جی رہے تھے۔ نہ بریرہ کو کوئی فرق پڑا تھا، نہ ابراہم کو۔ برباد تو صرف وہ ہوئی تھی، بنا جرم کے معتوب ٹھہرائی گئی تھی، اپنوں سے دور رہ کر ایک غیر یقینی زندگی گزار رہی تھی۔ آنے والا کل اس کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ نہ تعلیم مکمل تھی کہ کسی ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مار لیتی، نہ ہی حالات سازگار تھے کہ اپنی ادھوری تعلیم کا سلسلہ پھر سے جوڑ لیتی۔ بریرہ، آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر تصور میں بریرہ کو مخاطب کرتی۔ دل تو چاہتا تھا بریرہ کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دے، مگر پھر اپنی فیملی کا خیال آتا کہ بریرہ سارا الزام اس کے سر ڈال کر اس کو اور اس کی بہنوں کو بدنام کر سکتی تھی۔ کئی بار دادی کے فون سے گھر کال ملائی تھی، مگر ہر بار موبائل بند ملا تھا۔ شاید نمبر بدل دیا ہوگا۔ وہ پریشانی میں رات بھر کروٹ پر کروٹ بدلتی تھی۔ اس گھر میں پہلی رات نہ جانے کیسے وہ جی بھر کر سوئی۔ اس کے بعد تو نیند ہی نصیب میں نہیں تھی۔ ابراہم کے ساتھ بھی پہلے دن کی تلخ کلامی کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی دادی سے ملنے بلا ناغہ آتا، مگر نشرہ سے مخاطب ہونے سے احساس برتتا۔ اسے بھی اس شخص پر بے انتہا غصہ تھا جو اسے دیکھ کر خود بخود اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ ارے، یہ پالک اس طرح نہیں کاٹتے، مجھے دو، میں نفاست سے بنا کر دکھاتی ہوں۔ دادی مہرالنساء نے نشا کے ہاتھ سے چھری اور سبزی والی ٹوکری لے کر اپنے سامنے رکھی، اور پالک کی گٹی میں سے ایک پتا چن کر برابر کاٹنے لگی۔ نشا نے غور سے ان کا انداز دیکھا۔ یوں تو غریب کی بیٹی ہو، پر کاموں میں اناڑی پن بالکل امیر زادیوں جیسا ہے۔ غربت میں تو لڑکیوں کو سب سیکھنا چاہیے بیٹا، چاہے سینا پرونا ہو یا کھانا پکانا، آگے کام آتا ہے۔ دادی نے مصروف انداز میں نصیحت کی۔ وقت کا ویسے ہی کچھ پتہ نہیں چلتا، اور بیٹی کا نصیب تو وقت سے بڑھ کر ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تو نشا اداس سی ہو گئی۔ ارے، منہ کیوں اتر گیا تمہارا؟ میں نے تو بھلی بات کہی ہے بچی۔ تمہاری ماں نے شاید تمہاری شہزادیوں جیسی صورت دیکھ کر سوچا ہوگا اس کو چولہا چکی میں نہیں جھونکوں گی، دودھ ملائی جیسی رنگت خراب ہو جائے گی۔ یہی بات ہے نا؟ انہوں نے دانستہ بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ شاید۔ نشا نے یک لفظی جواب دیا اور سر جھکا لیا۔ میری دادی بھی آپ کی طرح مجھے بہت نصیحتیں کرتی تھی، کاش میں ان کی نصیحتوں پر کان دھر لیتی۔ وہ دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ کیا بولی بیٹا؟ دادی نے اس کے ہلتے لب دیکھ لی۔ دادی، میں اتنی بھی پھوڑ نہیں، آپ کو پتا ہے چائنیز کھانے بہت اچھے بناتی ہوں۔ اس نے سر اٹھایا اور موڈ بدل کر کہا، آج میں آپ کو چائنیز رائس اور شاشلیک بنا کر کھلاؤں گی، یہ پالک آپ کل کے لیے اٹھا رکھیں۔ پھر وہ ایک جوش سے اٹھی، ٹھیک ہے بنا لو، آج اپنی پسند کا کچھ۔ دادی نے اس کی چمکتی صورت دیکھی۔ آپ چائنیز فوڈ کھاتی ہیں نا؟ وہ کچن کی طرف جاتے جاتے پلٹی۔ کھا لوں گی بیٹا، انہوں نے رسان سے کہا۔ تہا کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں ہی وہ کچن سے نکلی۔ ادھر ہی ہوگا۔ تہا بیٹا، تہا؟ جی دادی۔ دادی کی آواز پر وہ چھت سے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، ہاتھ میں پتنگ اور ڈور تھی۔ شاباش ہے، صبح سے صرف اوپر پتنگے ہی اڑا رہا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا۔ دادی نے اسے دیکھ کر سر پیٹا۔ دادی،
चाइनीज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ये तहा से मंगवा दें। नशा ने एक कागज़ दादी को थमाया। आज चाइनीज़ खाना बनेगा बाजी? तहा ने खुश होकर पूछा। हाँ हाँ चटोरे लड़के, ये चीज़ें जल्दी ले आ। दादी ने उसे कागज़ दिया तो वो फौरन बाहर भागा। फिर मतलूबा अशिया के आते ही नशा ने बहुत कम वक्त में खाना बना लिया। वो खाना मेज़ पर चुन रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये अब्राहम की मखसूस दस्तक थी। तहा दौड़ कर गया और दरवाज़ा खोल दिया। दादी, अब्राहम भाई आए हैं। वो चीखा। ये तुम रोज इतनी जोर से मेरे आने की खबर दादी को सुनाते हो या पड़ोसियों को? अब्राहम ने उसके सर पर चपत लगाई। आज खिलाफ मामूल वो दोपहर में आया था। मेरा अब्राहम आया है। बहुत अच्छे वक्त पर आए। हाथ मुंह धोकर आओ, खाना लग गया है। दादी पोते को देखकर शाद हो गई। हाथ मुंह धुले हुए हैं दादी, अपने ऑफिस से खाली पेट निकला हूँ। घर जाते आते बस इधर आने का ख्याल आ गया। मेरा विजदान कहता था दादी ने जरूर कुछ बहुत अच्छा बनाया होगा। वो हंसकर कहते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया और बेतकल्लुफी से एक प्लेट में चाइनीज राइस डाले। दादी कुर्बान मेरे बच्चे पर। नशा, अब्राहम को सालन निकाल कर दो। दादी ने खुश होकर नशा से कहा, जिसके हाथ सुस्त पड़ चुके थे। उसने सालन का डोंगा अब्राहम के सामने रखा। इसमें डाल दीजिए। अब्राहम ने मुस्कुराकर प्लेट आगे की। नशा ने नाचार कुछ सालन निकाल कर प्लेट में डाला। बहुत टेस्टी। क्या लजीज खाना बनाया है दादी। जरा अपने हाथ दिखाएं, मैं चूम लूं। उसने पहला निवाला लेते ही दादी का हाथ थाम लिया। अरे, मैंने नहीं बनाया। मुझे क्या पता ये बदेसी खाने कैसे बनते हैं। ये तो अपनी नशा ने बनाया है। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाकर बताया तो अब्राहम ने पास खड़ी नशा को देखा, जो लाशऊरी तौर पर पीछे हटी। एक बेसाख्ता मुस्कुराहट अब्राहम के लबों पर आई। इतना उम्दा खाना खिलाने के लिए आप तो इनाम की हकदार हैं मोहतरमा। कहिए, क्या इनाम लेंगी? अब्राहम ने मुस्कुराती नजरें उस पर जमा कर पूछा। इनाम तो आप मुझे जिंदगी भर का दे ही चुके हैं। दर बदरी का, दर मांदगी का। मुझे और किसी इनाम की हाजत नहीं है। नशा की आवाज इतनी धीमी थी कि अब्राहम बामुश्किल सुन पाया और सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया। नशा की आंच देती नजरें उसके आर पार हो रही थी। दादी तक नशा के अल्फाज तो नहीं पर निगाहों की हिद्दत जरूर पहुंची थी। उन्होंने बहुत तवज्जो से पोते की बदलती रंगत भी देखी। खाना खाओ ना बेटा, रुक क्यों गए? उनके कहने पर अब्राहम ने बददिली से चावलों में चमचा घुमाया। नशा, तुम कहाँ जा रही हो? इधर बैठकर खाना खाओ। फिर उन्होंने मुड़कर जाती नशा से कहा, जी दादी। वो ना चाहते हुए पलटी और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। माहौल एकदम खामोश सा हो गया था। मेज पर अब सिर्फ ताहा रगबत से खाना खा रहा था। दादी को इस भेद भरी चुप ने उलझन में डाल दिया था। नशरा बेटी, तुम अपने घर हर माह पैसे भिजवा देती हो, खुद क्यों नहीं जाती? माँ बाप याद करते होंगे। तीसरे माह दादी मेहरुनिसा ने नशरा से पूछा तो वो गड़बड़ा गई। इधर आपके पास दिल लग गया है दादी, क्या करूं वहां जाकर? नशरा ने बज़ाहिर बेनियाजी से कहा। फिर भी माँ को तो तुम्हारी सूरत देखने की हुड़क उठती होगी। उसका दिल ठंडा करके आओ बच्ची। पैसे औलाद का नेमुल बदल तो नहीं होते। उन्होंने इसरार किया तो नशरा की आंखें माँ के जिक्र पर भीगने लगी। उसका दिल चाहा दादी के आंचल में मुंह छुपाकर इतना रोए कि ये हिजर का दर्द आंसुओं के रेले में हमेशा के लिए बह जाए। अपने दिल में छुपे नासूर को उनके सामने आया करके किसी मरहम का सामान कर ले। दादी, मैं घर जाना चाहती हूँ मगर। नशरा ने गीली आवाज में बात अधूरी छोड़ी। हाँ तो हो आओ ना, क्या मसला है? दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो पिघल कर उनसे लिपट गई। अरे अरे, ये क्या पगली, रोती क्यों हो? मैं अभी अब्राहम को फोन करके कहती हूँ तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा लाए। उन्होंने घबरा कर कहा। दादी, मैं कैसे जाऊं? नशरा ने शिद्दत से रोते हुए पूछा। कैसे जाऊं मतलब? अब्राहम के साथ गाड़ी पर हो आओ। वो उसे पुचकार कर बोली। मगर उस हादसे के बाद नशा की बात दरवाजे की तेज दस्तक पर अधूरी रह गई। अब्राहम भाई आए हैं। तहा ने दरवाजा खोलकर हस्बे आदत नारा लगाया। वो मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। हाथ में फ्रूट्स के थैले थे। अस्सलाम वालेकुम दादी। उसने बरामदे में आकर कुछ हैरत से दादी को सलाम किया, जो रोती हुई नशरा की पीठ सहलाते परेशान नजर आ रही थी। खैरियत तो है? उसने मोहतात अंदाज में पूछा। शाबाश है बेटा, तुम्हें बच्ची के साथ बहुत अच्छा किया है। दादी ने अफसोस से कहा तो अब्राहम का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? वो बौखलाया। इतने दिन हो गए, उसके इसके घर वालों से मिलवाने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें? जीती जागती लड़की है, कोई गुड़िया नहीं जिसे मेरा दिल बहलाने को
ले आए हो। पीछे इसका भी कोई घर है, घर वाले हैं जिनकी याद इसे बेकरार करती होगी। ये बच्ची दिल पर जबर करके मुझे अपने घर जाने का कहती ही नहीं। तुमने ही समझाया होगा दादी को छोड़कर नहीं जाना। उन्होंने अपने आंचल से नशा के अश्क साफ करते पोते को लताड़ा तो अब्राहम का सांस बेहाल हुआ। ओह तो ये बात है, यही बात है। चलो अभी और इसी वक्त नशा को उसके घर ले जाओ। अपने घर वालों से मिलकर वापस आना चाहे या एक दो दिन वहीं रहना चाहे, तुम बिल्कुल मना मत करना। दादी ने रोब से कहकर नशा को कांधों से पकड़ा। बस अब बंद करो ये रोना, जाकर मिलाओ अपने घर वालों से। उनकी बात पर नशा ने एक बेबस नजर उन पर डाली। ऐन वक्त पर अब्राहम ना आता तो वो उनसे अपने दिल का दर्द कह चुकी होती। चलो उठो अब, जाकर मुंह हाथ धोकर आओ। शाबाश। उनके इसरार पर वो उठी और कमरे में चली गई। बहुत बुरी बात है बेटा, अपने मुफाद के लिए दूसरे की बच्ची को जबर से अपने पास बिठाए रखा। 3 माह हो गए, बच्ची क्या महसूस करती होगी? दादी ने अब्राहम से धीमी आवाज में कहा। वो खुद जाना नहीं चाहती दादी। अब्राहम ने बहाना बनाया। लो, ये क्या बात हुई? दादी मेहरुन्निसा ने सर झटक कर नशा को देखा जो रोए रोए चेहरे के साथ कमरे से निकली थी। अब्राहम, अब उठो, नशा को ले जाओ। उनके कहते ही वो फर्माबरदारी से उठ खड़ा हुआ। चलिए मैडम। हाथ में गाड़ी की चाबी झुलाता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाओ बेटी, अगर 2-3 दिन रहना चाहो तो बेशक रह लेना। दादी ने फराग दिली से कहा। नशरा ने परेशानी से उनको देखा। आओ नशरा। अब्राहम ने जोर से पुकारा तो नशरा को गुस्सा आ गया। कहा, वो फ्रूट के थैले इधर लाओ। एकदम दादी को ख्याल आया। ताहा ने फौरन किचन से आकर दिए। बेटी, ये अपने घर ले जाओ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने बटवे से कई हरे नोट निकाल कर नशा के हाथ में थमा दिए और फ्रूट से भरे शॉपर भी दिए। दादी ये क्या, बस अब जाओ, अल्लाह की अमान। उन्होंने कुछ पढ़कर फूका। नशा ने कदम नाचार दरवाजे से बाहर निकाले। कुछ फासले पर अब्राहम कार का दरवाजा खोले खड़ा था। वो एक सांस भरकर उसकी तरफ आई। ये शॉपर दो मुझे। अब्राहम ने उसके हाथ से शॉपर लेकर पिछली सीट पर रखे। आओ बैठो। उसको यूं ही खड़ा देखकर वो बोला। वो टस से मस नहीं हुई। नशा कम ऑन, लोग देख रहे हैं। अब्राहम ने आसपास देखा। बदनामी से डरते हो? अभी तक खुश नाम हो ना। दुनिया के आगे, दादी के आगे सर उठाकर चलते हो। तुम्हारे अंदर के घटिया इंसान की किसी को आगाह ही नहीं। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली। मातूब तो मैं ठहरी हूँ, ना घर रहा ना ही नेक नामी। अपनों से दूर हुई उनकी निगाहों से गिर गई हमेशा के लिए। नशा की आवाज में नमी घुल गई थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर उसकी आंखों में आग भर गई। अब्राहम को उसकी नजरें भस्म करती महसूस हुई। उसने बेख्तियार नजरें चुराई। जो बोलना है, जितना मुझे लान तान करना है, तुम गाड़ी में बैठकर कर सकती हो। प्लीज आकर बैठ जाओ। अब्राहम ने इल्तिजा की। मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गाड़ी में। तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से मुझे कहीं ले जाओ। दादी समझे मैं अपने वालदैन के घर गई हूँ। वो बेमुरवती से कहकर पैदल आगे बढ़ी। नशरा, मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? अब्राहम ने अफसोस से कहा। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। नशरा गुस्से में तेज चलने लगी। अब्राहम का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो उसके साथ चलता रहा। दोनों चलते चलते मेन रोड तक आए। नशरा, कब तक चलती रहोगी? आओ, उस कैफे में बैठ जाते हैं, वक्त गुजारी भी हो जाएगी और कुछ बातें तुमसे क्लियर भी कर लूंगा। अब्राहम ने रसान से कहा तो नशा को एहसास हुआ कि वो बेमकसद तपती धूप में चलती चली जा रही है। दादी की तसल्ली के लिए 1-1.5 घंटा घर से दूर रहकर गुजारना होगा, लेकिन कड़ी दोपहर में चलते रहना अकलमंदी नहीं थी। उसने कैफे की तरफ कदम बढ़ाए तो अब्राहम ने सुख का सांस लिया। कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स का ऑर्डर देकर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, जो मुंह फुलाकर बेनियाज बैठी थी। नशा, मेरी बात सुनो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली से माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देकर अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। फिर मुझे जो भी सजा मिले मैं भुगतने को तैयार हूँ। अब्राहम की बात पर एक तंजिया मुस्कुराहट नशरा के लबों पर आई। अब मैं दूध में भी नहा लूं तब भी पाक साफ नहीं कहलाई जा सकती अब्राहम। तुमने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। इस कीचड़ का मैल मेरे बदन से मरकर भी नहीं उतरेगा। वो बोली तो लहजे में कांच टूटा था। अब्राहम की नजरें मेज की सतह पर टिक गई। नशरा, यकीन करो, मैंने जिंदगी में ये पहली गलत हरकत की थी जिस पर कुदरत की पकड़ इस तरह हुई है कि मैं बेइंतहा शर्मिंदा होकर रह गया हूँ। तुम्हारे मुसलसल मेरी पहचान से इनकार पर मुझे गुस्सा आ गया था, वरना मेरा इरादा तुम्हें किडनैप करने का नहीं था। तुमसे कुछ हिसाब किताब बेबाक करने थे, इसलिए कुछ देर के लिए ऐसी जगह ले गया जहां तुम्हारे साथ
तसल्ली से बात हो सके, वरना गाड़ी में तो तुमने मुझे चीख-चीख कर लोगों के हाथ पिटवा ही देना था। फार्म हाउस में तुमसे बात-पूछ करते अचानक तहा की कॉल आ गई। दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उल्टे कदमों दादी के पास दौड़ा, उनका बीबी शूट कर गया था और घर में तहा के सिवा कोई दूसरा उनकी मदद के लिए नहीं था। मेरे होश उड़ गए थे। उनको हॉस्पिटल ले जाते, उनका ट्रीटमेंट करवाते, मेरे ज़हन से तुम बिल्कुल महू हो गई थी। बस दादी की ज़िंदगी की भीख अल्लाह से माँग रहा था। वो बहुत कड़ा वक़्त था। अब्राहम हाथ मलते धीमे से बताने लगा, तुम्हारा कड़ा वक़्त मेरा कड़ा इम्तिहान बन गया। नशरा ने एक ठंडी सांस भरी। वेटर खाने पीने की अशिया ले आया था। दोनों खामोश हो गए। ये लो। अब्राहम ने उसके आगे कोल्ड ड्रिंक रखी। नशरा ने चुपचाप उठाकर स्ट्रॉ मुंह से लगा ली। अंदर आग सी भड़क रही थी, जिसको निकलने का रास्ता मुयस्सर ना था। ना कोई दर्द सुनने वाला था, ना जख्म पर मरहम रखने वाला। हो आई अपने घर से, दिल खुश हुआ, माँ के कलेजे को भी ठंडक मिली होगी। 1 घंटे बाद वो वापस आई तो दादी ने खुश होकर पूछा, बहुत खुश हुई इसकी अम्मी। अब्राहम ने नशा को खामोश देखकर जवाब दिया, चलो अच्छा है। उन्होंने नशा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। सच कहूं बेटा, तो इस 1 घंटे में इस घर की रोशनी मान पड़ गई थी। मैंने तुम्हें वहां रहने का कह तो दिया, मगर तुम्हारे जाने के बाद दिल इतना उदास हुआ कि सोचा अब्राहम को फोन करके कह दूं तुम्हें जल्दी मेरे पास वापस ले आए। दादी ने बहुत मोहब्बत से नशा का हाथ दबाया। नशा की आंखें उनकी मोहब्बत पर नम हो गई। दादी, मेरे लिए तो आपको ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई कि कॉल करके मुझे वापस बुलवाएं। अब्राहम ने मसनूई नाराजगी दिखाकर उनके दूसरी तरफ बैठा। तू तो मेरी जान है, तेरा कोई मुकाबला नहीं। दादी ने अपना बाजू अब्राहम के गिर्द लपेटा। प्यारी दादी। अब्राहम ने अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया। दादी, फ्रेश होकर आती हूँ। नशा ने अपना हाथ नरमी से छुड़ाया और उठकर कमरे में चली गई। अब्राहम, दादी ने पुकारा। जी दादी। बेटा, नशा तुमसे बहुत नाराज दिखाई देती है। क्या बात है? दादी के सवाल पर वो चौंक गया। मुखालिफ जिन्स के साथ उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। लड़कों से सख्त लहजे में बात करती है ताकि अगले के दिल में खुशफहमी ना जागे। अब्राहम ने सोचकर बहाना गढ़ा, ये तो अच्छी बात है, औरत को इतना ही मजबूत होना चाहिए। मगर मैं देख रही हूँ उसके इस कड़े रवैये के बावजूद तुम उसकी तरफ मुल्तफित हो। दादी की बात पर वो एकदम सीधा हुआ। आपसे किसने कह दिया दादी? तुम्हारी आंखें कहती हैं। दादी ने तुरंत जवाब दिया। अब्राहम चुप सा हुआ। वो उसके अंदर तक झांक रही थी। अच्छी लगती है तुम्हें? कहो तो रिश्ते की बात चलाऊं? उन्होंने अब्राहम को बौखला कर रख दिया। नहीं दादी। क्यों नहीं? फैसल से डरता है? उससे मैं खुद बात कर लूंगी। बड़ा आया स्टेटस स्टेटस करने वाला। गांव के कच्चे मकान में पैदा हुआ, 20 साल वही रहा, 25 साल में साहब बना तो सब भूल गया। गुर्बत कोई ऐब नहीं है। लड़की के अतवार और किरदार देखना चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज है। और नशरा अतवार और किरदार के अलावा सूरत से भी शहजादी है। वो उसका कांधा दबाकर बोली, दादी, मैं माली तौर पर इतना खुदमुख्तार हो चुका हूँ कि पापा मेरे फैसलों के आगे दीवार नहीं बन सकते। इट्स माई लाइफ एंड माई ओन चॉइस। वो मजबूत लहजे में बोला तो दादी बेतरह खुश हुई। तो फिर कैसी परेशानी? अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करो और नशरा को अपना लो। नहीं दादी, नशरा नहीं मानेगी। अब्राहम ने उदासी से कहा, कैसे नहीं मानेगी? भला मेरे पोते में क्या कमी है? लाखों में एक है। दादी को बुरा लगा। उसे कमी लगती है ना, आप बस उसे कुछ मत कहना। अब्राहम के इसरार पर दादी चुप हो गई। नशरा, वो रात को दादी मेहरुनिसा की टांगे दबा रही थी जब दादी ने प्यार से पुकारा, जी दादी। नशरा ख्यालों से चौंकी। बेटा, एक बात कहूँ? कहिए दादी। मेरा पोता अब्राहम तुम्हें कैसा लगता है? उनके सवाल पर नशरा अपनी जगह से हिल गई। क्या मतलब दादी? अरे, सीधा साधा सवाल पूछा है, अब मतलब कहाँ से बताऊं? वो अपनी टांगे समेटकर उठकर बैठी। सही है, उसने मोहतात अंदाज अपनाया। लो, ये क्या बात हुई? खुलकर राय दो। दादी बुरा मान गई। क्या कहूँ दादी? अपने दिल की कहो बेटी। अब्राहम मेरा लाडला पोता तुम्हें पसंद है या नहीं? आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? नशरा ने उलझ कर उनको देखा। क्योंकि मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। दादी की बात पर नशरा गंग रह गई। रेवेन्यू अफसर है मेरा पोता। इसके अलावा अपना बिजनेस भी चला रहा है। बाप से अलहदा रहता है,
रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, ना कोई बुरी लत लगी है, किरदार शराफत की गारंटी मैं देती हूँ। उन्होंने उंगलियों पर खूबियां गिनवाई और बगौर नशरा को देखा, जैसे जांच रही हो इतना पुरअसर तारुफ सुनने के बाद वो कैसा रिस्पॉन्स देती है। मगर वो सपाट अंदाज में उनको देखती रही। मैं जानती हूँ मेरे पोते में इतने गुण है कि तुम उसे नापसंद कर ही नहीं सकती, उन्होंने जोर देकर कहा। और अगर मैं ये कहूँ कि नापसंद तो बहुत छोटा लफ्ज है, मैं आपके पोते से नफरत करती हूँ। फिर यकायक नशरा ने जहर जहर होकर कहा तो दादी का मुंह खुल गया। क्या मतलब? मतलब आप अपने पोते से पूछिए, नशा कहकर पलंग से उठने लगी। वो यहाँ नहीं है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपका फरिश्ता सिर्फ पोता आपको अच्छे तरीके से अपने कारनामे सुना सकता है। मैं जो भी कहूंगी आपको झूठ लगेगा, उसने चीख कर कहा। सच झूठ की पहचान है मुझे। तुम सिर्फ वो बात बताओ जिसने तुम्हें अब्राहम से नफरत करने पर मजबूर किया है। दादी की गिरफ्त उसके हाथ पर सख्त हुई। मैं जो सह चुकी हूँ वो सुन सकेंगी आप? नशा ने सुर्ख आंखें उन पर जमाई। सुन लूंगी। तुमने सह लिया, मैं क्या सुन भी नहीं सकती? दादी ने उसके रुखसार पर हाथ फेरा। नशा पिघलने लगी। दादी, मेरा नाम नशरा अम्माद है। हम 4 बहनें हैं, बाबा बैंक में मुलाजिम हैं। मेरी अम्मी की चचाजाद कजन बरीरा, जिनको मैं अपनी खाला, अच्छी दोस्त, एक बहन और ना जाने क्या कुछ समझती थी। उन्होंने नशा ने धीमे धीमे कहना शुरू किया, अलिफ से ये तक। वो अपनी जात पर बीती जख्मों की दास्तान बहते आंसुओं में उन्हें बताती चली गई। परीरा और अब्राहम का जिक्र जहां जहां आता वो सिसक पड़ती, अपना दिल उनके आगे खोल कर रखते। उसे एहसास नहीं हुआ कि दादी के चेहरे की रंगत खतरनाक हद तक पीली पड़ चुकी है। उनकी आंखों में बेयकीन सा दुख तैर रहा है। उनकी सांस की रफ्तार बढ़ते बढ़ते उखड़ने लगी है। नशा को उनका हाथ पसीने से तर महसूस हुआ तो वो चौंकी। दादी एक तरफ लुढ़क रही थी। दादी! नशा बेसाख्ता चीख मारी और उनको बाहों में संभाला। तहा जल्दी आओ! उसने घबराकर तहा को पुकारा। क्या हुआ नशा भाजी? तहा अंदर आया तो दादी की हालत देखकर बौखला गया। तहा, अब्राहम को फोन करो। नशा ने रोते हुए दादी का गाल थपथपाया। दादी उठिए प्लीज। अब्राहम भाई, दादी की तबीयत खराब है, जल्दी आइए। तहा ने दादी के मोबाइल से ही नंबर मिलाकर अब्राहम को इत्तला दी। तहा, इनको क्या हो रहा है? ये आंखें नहीं खोल रही। वो घबराकर पूछने लगी। ये तो उस दिन वाली हालत है जब दादी को अटैक आया था। तहा ने करीब आकर कहा तो नशा का दिल लरस गया। अल्लाह ना करे, ये उस दिन बेहोश नहीं हुई थी, आज की हुई। तहा खुद घबराया हुआ था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो तहा भाग कर गया। क्या हुआ दादी को? चंद लम्हों में अब्राहम तेज रफ्तारी से अंदर आया। दादी, दादी! वो बेहोश दादी का चेहरा थपथपाने लगा। फिर उनका कमजोर वजूद बाहों में भरकर खड़ा हुआ। कहा, मैं इनको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो बाहर निकलता चला गया। नशा ने लपक कर अपना दुपट्टा ओढ़ा और उसके पीछे भागी। वो दादी को कार की पिछली सीट पर लिटा रहा था। नशा दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठी और दादी का सर अपनी गोद में रख लिया। अब्राहम ने अगली सीट संभाली और गाड़ी फुल स्पीड से भगा दी। अस्पताल की इमरजेंसी में फौरी तौर पर दादी को दाखिल किया गया और उनकी ईसीजी और मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। वो किसी शौक के जेर असर बेहोश हुई थी और अब उनको होश में लाने की तदबीर की जा रही थी। नशा परेशान हाल खड़ी थी जब अब्राहम सुर्ख आंखें लिए उसकी तरफ आया। दादी ठीक तो है अब्राहम? उसने झेंपती आवाज से पूछा। ऐसा क्या कह दिया तुमने दादी से कि वो सदमे से होश को बैठी? वो पास आकर गुर्राया था। मैंने कुछ नहीं कहा। वो घबरा गई। तो वो बेहोश क्यों हुई? मैं जब तक बैठा रहा तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे बताओ नशरा, मेरे जाने के बाद तुम दोनों के दरमियान क्या बातें हुई? अब्राहम ने कड़ी नजरों से उसे देखा। वो तुमसे शादी करने पर इसरार कर रही थी तो तुमने मेरी असलियत उनके सामने खोल कर रख दी। अब्राहम ने उसकी बात काटी। नशा ने सर झुका लिया। क्या मिला तुम्हें उनको ये सब बताकर? अब्राहम अफसोस से कहकर बेंच से ढह गया। इससे अच्छा होता तुम मुझे गोली मार देती। कह तो रहा था मैं हर किस्म की सजा के लिए तैयार हूँ। मेरी कमजोर दादी को यूं मौत के मुंह में तो ना पहुंचाती। उन्होंने तुम्हें कितना प्यार दिया, कितना मान दिया, अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। कुछ तो ख्याल करती। वो अपना सर पकड़कर भीगी आवाज में बोला। नशा की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ। वाकई एक बुजुर्ग खातून को उनके लाडले पोते की मनफी बातें बताना उनको मार देने के मुतरादिफ था। मेरी दादी को अगर कुछ हुआ ना नशा, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब्राहम झटके से उठा और उसे धमकी देकर इमरजेंसी की तरफ चला गया। वो हाथों की उंगलियां खाती आंसू बहाती वहीं खड़ी रह गई। दरमानदा जिंदगी में एक ही तो घर मिला था जिसमें वो खुद को मुकम्मल महफूज समझती थी। दादी मेहरुनिसा का छांव जैसा वजूद मिला था जिसके साय तले वो सुस्ता रही थी।
और उसने अपने हाथों से दोनों को खो दिया। काश ए काश वो अपनी जिंदगी का बदसूरत सच उनके सामने बयान ना करती। ना दादी को सदमा होता, ना वो होश से बेगाना होती। नशा देर तक खुद को मलामत करती दादी की जिंदगी की दुआएं मांगती रही। अब्राहम बेकरार सा डॉक्टर्स के पीछे फिर रहा था। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। खौफ के साए नशा को अपनी गिरफ्त में लेने लगे थे। दादी के मरने का खौफ, अपने तन्हा रह जाने का खौफ। वो रो रो कर अधमोई हो चुकी थी। दुआ करते लब सूख गए थे जब एक नर्स ने उसको जिंदगी की नवीद दी। आपकी पेशेंट को होश आ गया है, उनको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। वो ये अल्फाज सुनते ही जी उठी। किस तरफ, कहाँ? उसकी बेकरारी पर नर्स ने रूम नंबर बताया। नशा उड़ती हुई वहां पहुंची, मगर दरवाजे पर ही अब्राहम ने उसे रोक लिया। हटो अब्राहम, मुझे दादी को देखना है। वो तुम्हें देखकर डिस्टर्ब होंगी। मैं नहीं चाहता वो फिर बेहोश हो जाए। अब्राहम ने खुश लहजे में कहा। वो तुम्हें देखकर डिस्टर्ब नहीं हो रही। जिसका ये सब किया धरा है, मैंने क्या कसूर किया है? नशा ने गुस्से से उसे एक तरफ धकेला और अंदर दाखिल हुई। दादी नीम व आंखें खोले लेटी हुई थी। वो इस वक्त दवाओं के जेर असर है। नशा, डॉक्टर्स कहते हैं उन्हें मजीद कोई टेंशन नहीं देनी। अब्राहम ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़कर रोका। मैं उनको कुछ नहीं कह रही अब्राहम, बस दूर बैठी रहूंगी। नशा ने चिढ़कर अपना बाजू छुड़ाया और काउच पर जाकर बैठ गई। तुम घर चलो, मैं हूं उनके साथ। अब्राहम ने फिर कहा। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। सब रिश्ते छुड़ा दिए तुमने। अब तो दादी ही मेरा सब कुछ है। उनको छोड़कर कहाँ जाऊं? नशा भीगी आवाज में बोली तो अब्राहम उसे देख कर रह गया। ओके, फिर रहो यहीं, वो कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। नशा ने दादी को देखा, जो चंद घंटों में इंतहाई कमजोर नजर आ रही थी। उसने दिल ही दिल में उनसे माफी मांगी और काउच पर नीम दराज होकर अपनी हथेली गाल के नीचे रख दी। दादी को यकटिक देखते ना जाने कब उसके आंखें बंद हुई, पता ही ना चला। नशा, उसको किसी ने धीरे से पुकारा था। नशा ने बामुश्किल नींद से भरी आंखें खोली। अब्राहम पैंट की जेबों में अंगूठे फंसाए सामने ही खड़ा था। वो एकदम उठी और सिरहाने पड़ा दुपट्टा ओढ़ा। अगर सोना ही था तो घर जाकर सो जाती। वो नाराज लहजे में बोला। सॉरी, नींद आ गई। दादी कैसी है? नशा ने बेड पर नजर की, जहां दादी तकियों के सहारे बैठी नर्स की मदद से सूप पी रही थी। बेहतर है। चंद टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी है, फिर दादी को डिस्चार्ज कर देंगे। अब्राहम ने बताया तो नशा ने बेख्तियार शुक्र का सांस भरा। फिर वो फ्रेश होकर वापस आई तो दादी फिर से लेटी हुई नजर आई। अब्राहम उनके बेड के बराबर में कुर्सी लगाए बैठा था। नाश्ता कर लो। उसे देखकर अब्राहम ने मेज की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से आकर काउच पर बैठी और नाश्ता करने लगी। एक्सक्यूज मी। नर्स अंदर दाखिल हुई। आइए सिस्टर। अब्राहम अपनी जगह से उठा। नर्स ने दादी के बेड के साथ लगे स्टैंड में ड्रिप की बोतल लगाई और दादी की तरफ बढ़ी। अब्राहम बेटा, मुझे नहीं लगवानी ड्रिप। दादी नहींफ अंदाज में बोली। ये इंजेक्शन ड्रिप में डालना है, मिस हो गया। आप स्टोर से ले आए। नर्स ने एक चिट पर कुछ लिखा और अब्राहम को दिया। नहीं अब्राहम, तुम यहीं रहो, ये मुझे सुई लगा देंगी। दादी ने अब्राहम का बाजू दबोच लिया। उफ दादी, आप भी। नशरा, ये इंजेक्शन तुम ले आओ। मेडिकल स्टोर सेकंड फ्लोर पर है। अब्राहम ने चिट और कुछ पैसे नशा की तरफ बढ़ाए। नशा कमरे से निकली और लिफ्ट के जरिए सेकंड फ्लोर पर वाकई अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर आई। मतलूबा इंजेक्शन लेकर वापस मुड़ी तो सामने से गुजरती असरा को देखकर ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। असरा अपने शौहर के साथ ही उनका रुख गायनी वार्ड की तरफ था। नशा का दिल तेज धड़कने लगा। इतने अरसे बाद अपनी माँ जाई को देखा था। दिल चाह रहा था दौड़कर गले लगा ले, पर दरमियान में जमाना हायल था। वो दबे कदमों आगे बढ़ी। असरा का शौहर उसे लेडीज वेटिंग रूम में छोड़कर खुद बाहर बैठ गया था। नशा तेज तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। ऊपर पहुंचकर इंजेक्शन अब्राहम को थमाया और उजलत में फिर से बाहर निकल आई। इस बार उसने दुपट्टा चेहरे पर नकाब की तरह ओढ़ लिया था। सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। नीचे वेटिंग रूम में दाखिल हुई तो बहुत कम पेशेंट दिखाई दिए। असरा पेशेंट फाइल अपने सीने से लगाए दाईं तरफ बैठी थी। उसके बराबर वाली खाली जगह पर नशा चुपचाप आकर बैठ गई। डॉक्टर अभी नहीं आई? नशा ने उसे मुतवज्जो करने का पूछा। असरा उस आवाज पर बेतरह चौंकी और गर्दन मोड़कर उसे देखा। ढका छुपा चेहरा, मगर बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन चमकती आंखें। वही आंखें जिनको देखे जैसे सदियां बीत गई थी। नशरा, असरा की आवाज कपकपा कर निकली। लाइट ब्राउन आंखों में नमी सी तैर गई। नशरा, तुम कहाँ चली गई थी? क्यों गई? तुम तो खुश थी ना अपनी मंगनी पर, फिर ये अचानक क्या कर दिया? असरा ने बेकरारी से बहन का हाथ पकड़कर शिकवा किया। तुम्हें पता है, तुम्हारे पीछे हम मर गए हैं, सब मर गए हैं। अपने अपने कांधों पर सिर्फ जिंदा लाशें उठाए फिरते हैं। असरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी मर गई हूँ असरा, तुम सब तो साथ हो। एक दूसरे की लाशें धोने के लिए कंधे बदल लेते हो।
मैंने तो अपनी लाश तन्हा उठाई है, सब मलामत अकेले ही सही है। नशरा दबे दबे अल्फाज में सिसकने लगी। क्यों गई? तुम तो खुश थी ना अपनी मंगनी से, क्यों सही मलामत? क्यों अपनी बर्बादी का सामान किया? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। अगर तुम मुसव्विर के रिश्ते से इनकार कर देती तो भी कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें कुर्बानी देने के लिए तो नहीं कहा था किसी ने। मुझे चुपके से अपनी पसंद बता देती, मैं कोशिश करके अम्मी बाबा को राजी करके तुम्हारा वही रिश्ता करवा देती, या बरीरा को ही दिल का राज बता देती। उनसे तो बहुत क्लोज थी ना। असरा की बात पर वो तलखी से मुस्कुराई। बरीरा से क्लोज होने की तो सजा भुगती है, क्या मतलब? असरा ने हैरत से पूछा। बरीरा ने अपने सोशल अकाउंट से एक लड़के से दोस्ती की, मगर उसे तस्वीर मेरी दिखाई। 1 साल तक दोस्ती और प्यार का खेल रचाकर जब फेडअप हो गई और उस लड़के के मुलाकात करने के इसरार से तंग आई, तो अपना अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन वो अना का मसला बनाकर उनको ढूंढता फिरा। उस दिन शॉपिंग मॉल से वापसी पर मैं बरीरा से आगे निकल गई और गलती से उनकी गाड़ी समझकर उसी लड़के की कार में बैठ गई। बस वो यहीं से मेरी बदबख्ती का आगाज हुआ। वो मुझे बरीरा समझकर गुस्से में अपने साथ ले गया। नशा ने भीगी आवाज से कथा सुनाकर एक बड़ा सांस भरा। असरा हैरान होकर सुन रही थी। बरीरा इतना गिर सकती है, कभी सोचा ना था। और हमें रो रो कर तुम्हारे किसी और के साथ फरार हो जाने की इत्तला दे रही थी। असरा ने सदमे से कहा। बाबा अम्मी के तो सर झुक गए। नशरा, दुनिया ने उनकी तरबियत पर लानत मलामत की। इन 3 माह में क्या कुछ नहीं सहा हमने। वो अफसुर्दा लहजे में बोली, फिर ख्याल आने पर चौंक कर बहन को देखा। नशरा, वो लड़का तुम्हें कहाँ ले गया? तुम्हारी इज्जत? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इज्जत अल्लाह ने महफूज रखी है। वो लड़का इस गलत फहमी पर बहुत शर्मिंदा है। मैं उसकी दादी के साथ उनके घर रह रही हूँ। वो अपनी तबीयत खराबी की वजह से इधर एडमिट है। अल्लाह उनको सेहत दे। नशा फौरन बोली, आमीन। सुनकर इत्मीनान हुआ कि तुम महफूज हाथों में हो। असरा ने धीरे से कहा, हम बरीरा के पास गए भी थे असरा। मेरा मतलब मैं और अब्राहम, और उनसे बहुत लड़े, मगर वो जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। वो अजीब नफ्सियाती औरत है। मुझे पहली बार एहसास हुआ उनके अंदर कितनी तिश्नगी भरी हुई है। रुबाब को उनसे दूर रखना, बल्कि तुम सब उनसे ताल्लुक तोड़ लो। मेरे साथ तो बुरा हो सो हुआ, किसी और के साथ ना हो। रशा ने अफसरदा लहजे में कहा। बरीरा आंटी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असरा ने गुस्से से कहा। उनको सजा मिल भी जाए तो मेरी वापसी तो अपने घर नामुमकिन है। रशा ने आ भरी। असरा चुप हो गई। अम्मी बाबा कैसे हैं? और दादी और रुबाब मुझे याद करते हैं? रशा ने हसरत से पूछा। बाबा तो बहुत खामोश हो गए हैं। वो बीमार रहने लगे हैं। बाकी अम्मी, दादी, रुबाब और मैं तुम्हें याद नहीं करती। तुम्हें रोते हैं। नशरा, मेरी शादी के अव्वलीन दिन तुम्हारी गुमशुदगी के तानों की नजर हुए। मेरी सास तुमसे नफरत का इजहार करके शुक्र करती है कि उनके बेटे को तुम जैसी हल्के किरदार की लड़की नहीं मिली। असरा ने कर्ज से बताया। और मुसव्विर? नशा ने बेख्तियार पूछा। वो तो सास से भी 2 हाथ आगे है। ना जाने क्या कुछ कहता रहता है। असरा ने दुख से बताया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है नशरा। पलट कर तो शायद तुम कभी ना आ सको, पर अपनी जिंदगी को मजीद खराब मत करना। तुम्हारी बातों से लग रहा है अब्राहम नाम का लड़का माकूल है। तुम उसी के साथ शादी कर लो। फिर उसने बेकरारी से बहन का हाथ दबाया तो नशा उसे देख कर रह गई। मेरा इतना बड़ा नुकसान करने वाला मेरा मसीहा कैसे बन सकता है असरा? वो कर्ज से बोली। नुकसान तो तुम्हारा हो ही चुका है। अब अजाले की फिक्र करो। नशरा, ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम्हें रोल कर रख देगी। असरा ने खुलूस से समझाया। एक ला यानी खामोशी दोनों के दरमियान आ गई। आपका नाम असरा है, आपको अंदर बुला रहे हैं। एक खातून ने मुतवज्जा किया तो दोनों चौंकी। हॉल कमरा मरीजों से भर चुका था। अच्छा नशरा, अपना ख्याल रखना। असरा ने उठते हुए कहा। मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआगो रहूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। असरा, दादी अम्मी और बाबा को बताना कि मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे कबूल भले ही ना करे, मगर मुझे मुजरिम भी ना समझे। नशरा ने भराई हुई आवाज में कहा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं नशरा, मैं जरूर बताऊंगी। तुम्हारे वालदैन मजबूर है नशरा, कि बेकसूर बेटी को दोबारा घर में बसा नहीं सकते। असरा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। दोनों भरे दिल से एक दूसरे से अलहदा हुई। नशरा ने फिर से नकाब ओढ़ लिया, आखिरी नजर बहन पर डाली और तेजी से बाहर निकली। उसका रुख लिफ्ट की तरफ था। जैसे ही लिफ्ट खुली, वो जल्दी से अंदर दाखिल होते किसी से बुरी तरह टकराई। नशरा, अब्राहम ने उसको लड़खड़ा कर गिरने से बचाया। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने सारा हॉस्पिटल छान मारा, तीसरी बार इसी लिफ्ट से नीचे आ रहा हूँ। वो बेकरारी से बोला तो नशरा ने उसके परेशान चेहरे को देखा। यही थी, कहाँ जाऊंगी? उसने गीली आंखें झपक कर आंसुओं को छुपाने की सही की। मैं तो परेशान हो गया था नशरा।
थैंक गॉड तुम मिल गई। अब्राहम ने बेसाख्ता कहकर इत्मीनान का सांस भरा। उसके लहजे की सच्चाई नशरा ने शिद्दत से महसूस की। लिफ्ट खुल गई थी। दोनों दादी के रूम की तरफ एक साथ बढ़े। दादी की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई थी और सब क्लियर थी। उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। घर वापस आकर सबसे पहले नशरा ने 2 नफिल शुक्राने के अदा किए और फिर घर के कामों में लग गई। आज मुलाजमा ने छुट्टी कर ली थी, तो वो सफाई, बर्तन वगैरह साफ कर ली। दोपहर का खाना पकाने खड़ी हो गई। अब्राहम सारा वक्त दादी के पास बैठा था। खाना तैयार है। नशरा ने कमरे के दरवाजे से सर निकाल कर इत्तला दी। दादी तकियों के सहारे पलंग पर बैठी थी और अब्राहम उनके पैर दबा रहा था। दोनों ने नशरा की तरफ देखा। दादी का परहेजी खाना बनाया है? अभी खाएंगी या देर से? नशरा ने उसी पोजीशन में मजीद पूछा। तेरा मुझसे कोई पर्दा है क्या नशरा? कल से छुपती फिर रही है। दादी मेहरुन्निसा की बात पर वो झेंप कर कमरे के अंदर आई। आ मेरे पास, आकर बैठ। उन्होंने सिरक कर अपने बराबर में जगह बना ली। नशरा झिझक कर उनके पास बैठ गई। दादी ने अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरा। अब्राहम, नशरा एक हीरा लड़की है। फिर उन्होंने पोते को मुखातिब करके कहा। पोते ने सर अज़बात में हिलाया। मैं जानता हूँ दादी, उसने बगौर नशरा को देखते हुए जवाब दिया। नशरा कंफ्यूज सी हो गई। आते ही वो मौजूए गुफ्तगू बन गई थी। बेटा, तुमने उस मासूम सी लड़की के साथ बहुत बुरा किया। मेरा पोता ऐसा निकलेगा मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। दादी की अगली बात पर अब्राहम का सर झुक गया। दादी, कब से आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप मजीद बेइज्जती किए जा रही हैं। वो धीरे से बोला। मुझसे क्या माफी मांगता है? इस बच्ची से मांग, जिसका इतना बड़ा नुकसान किया है। दादी ने खफगी से कहा। इससे तो मैं पहले दिन से माफी मांग रहा हूँ। बेशक इससे पूछ ले। इतनी अच्छी तजवीज भी दी कि मुझसे शादी कर लो, मगर नहीं मानी। अब्राहम ने तुरंत कहा। ऐसे सड़क पर खड़े होकर शादी की पेशकश की जाती है? तेरी दादी मर गई थी, मुझसे कहता, मैं बच्ची से बात करती। दादी मेहरुन्निसा ने उसे घर का। तो नशरा समझ गई कि वो सुबह से कमरे में घुसा दादी को सारी बातें बता चुका है। तो बच्ची से बात की ना आपने भी? फिर कौन सा इसने आपको रजामंदी देकर हार फूल पहना दिए? अब्राहम मुंह फुलाकर बोला। नशरा दादी पोते के बीच खुद को हद दर्जा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। अब देख क्या रहा है, बाहर जा, मैं बच्ची से रिश्ते की बात करूं। दादी ने उसे घूरा तो वो अपनी जगह से उठा। जा रहा हूं दादी, मगर इस बार ना नहीं होनी चाहिए। अब्राहम ने बज़ाहिर दादी को मुखातिब किया, पर देखा नशरा की आंखों में था। नशरा ने बेसाख्ता नजरें झुका ली। वो कमरे से बाहर निकल गया। दादी ने उसके जाते ही नशरा का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया। नशरा बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्राहम की हर गलती की माफी मैं तुमसे मांगती हूँ। नहीं दादी, आप क्यों माफी मांगे? आपने क्या किया है? नशरा ने उनका हाथ सहलाया। वो मेरा पोता है ना, उसका कोई भी जुर्म मेरे खून पर मलामत है। वो कहकर खामोश हुई। नशरा उनकी खामोशी से घबराई। इनको टेंशन नहीं लेनी थी, मगर वो उन्हीं बातों में दोहरा रही थी। दादी, आप छोड़े इन बातों को। नशरा बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा ही नहीं, बल्कि समझा भी है। उन्होंने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। मेरे साथ मेरे घर में तुम कतई महफूज हो, मगर मैं बहुत ही कमजोर हूँ। तुम मुझे गिरती दीवार समझो। कब किस वक्त ढह जाऊं, कोई भरोसा नहीं। वो सांस भरकर बोली। अल्लाह ना करे। नशा ने बेख्तियार कहा तो वो फीका सा मुस्कुराई। ये हकीकत है, और हकीकत से नजरें चुराना अक्लमंदी नहीं। तुम्हें किसी मजबूत सहारे की जरूरत है बेटी, जो तुम्हारी ढाल बने और दुनिया के सर्दो गर्म से तुम्हें महफूज रख सके। अब्राहम वो सहारा बन सकता है। वो बगौर नशरा को देखने लगी, जो लब काट रही थी। तुम अगर उसे माफ करके उसकी हमराही कबूल कर लो तो ये तुम्हारे हक में बहुत अच्छा साबित होगा। बाकी मैं तुम्हें जबरदस्ती मजबूर नहीं कर रही। उनकी बात पर नशरा चुप रही। दादी ने कुछ देर उसे देखा, फिर मायूस होकर बेड क्राउन से सर टिका लिया। दादी, नशरा ने उनको पुकारा। जी बेटी। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। दादी, आप जो मेरे लिए मुनासिब समझे वो करें। अगर आप समझती हैं अब्राहम मेरे लिए बेहतर है तो ठीक है। वो सोच सोच कर बोली। अरे मेरी बच्ची, जीती रहो। दादी खुशी से एकदम सीधी होकर बैठी। उन्होंने नशरा के चेहरे को हाथों से थाम कर उसकी पेशानी का बोसा लिया, फिर चमकती आंखों से उसे देखती रही। अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं तुम दोनों की खुशियां देख सकूं। उन्होंने जज से दुआ की। नशरा ने फौरन आमीन कहा, फिर झेप गई। दादी, अगर आपकी चहीती ने मुझसे शादी की मंजूरी दे दी है तो मैं अंदर आ जाऊं? अब्राहम ने एकदम ही कमरे में आकर शरारत से पूछा। तुम अंदर आ चुके हो बेटा, और कान लगाकर हमारी बातें भी सुन चुके हो। दादी ने मुस्कुराकर कहा तो वो थोड़ी खुजाने लगा। क्या करूं, तजस्सुस ही इतना था। अब जल्दी से अपने ब्याह की तैयारी शुरू करो। मैं भी 2-1 दिन में घर में ढोलक रखवाती हूँ। आस पड़ोस की लड़कियां बालियां गाने बजाने आ जाएंगी। दादी ने खुशगवार लहजे में प्रोग्राम तरतीब दिया। मेरी शादी और इतनी सादगी?
नहीं प्यारी दादी, मैं होटल में अरेंजमेंट रखवाता हूँ। आप अपनी लड़की बालियों को लेकर वहीं चलिएगा। अब्राहम ने फौरन ऐतराज किया। लो, गाना बजाना तो घर से शुरू होगा। होटल में मेहंदी मायूं रख लेना। दादी ने मशवरा दिया। ढोलक भी वहीं होगी। क्यों नशरा? मैं सही कह रहा हूँ ना? अब्राहम ने बराह रास्त नशरा की आंखों में देखा था। वो पहली बार उसकी चमकती निगाहों से पजल हुई। नशरा बेटी, मेरा मशवरा ठीक है ना? ढोलक सबसे पहले घर आंगन में रखी जाती है। होटल वगैरह में बड़े ढोल ढमक्के होते हैं। दादी ने उसका बाजू पकड़कर सादगी से राय ली। नशरा दादी और पोते के दरमियान फंस गई थी। जो आपको बेहतर लगे वही कीजिए, वो धीमे से कहकर कमरे से बाहर भागी। अरे भाई, किसे बेहतर लगे, मुझे या दादी को? खुलकर बताओ। अब्राहम ने पीछे से आवाज लगाई। वो मुझसे कहकर गई है, बहुत फर्माबरदार बच्ची है। दादी ने वसूख से कहा। नहीं, उसने मुझसे कहा है ताबेदार बीवी बनने की प्रैक्टिस कर रही है। अब्राहम ने हंसकर कहा था। नशरा को दादी और पोते की नोक झोंक किचन तक सुनाई दे रही थी। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे से छलकी।